Good morning, students. At the same time, all of you are studying about Unit 7. In Unit 7, P block elements is running, and from P block element, we are starting today group 17 elements, that is also called as 7th A subgroup. Group 17 is also called as 7th A subgroup. In 7th A, that is group 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetyltitanium. These elements takes place, their position. Atomic number of fluorine, chlorine, bromine, iodine and AT are given 9, 17, 35, 53 and 85 respectively. All these elements are also called as halogens. Halogens are halides, except AT. Acetyltitanium is not supposed as a halogen because it is one of the radioactive substance and it is man-made. Chlorine, bromine and iodine, the source of fluorine FCl, Br and I is saline water of ocean, saline water of sea, SEAC, sea. सी मीन्स होता है समुद्र या ओशन, OCCEON. So, and the water of ocean, स्पेलिंग आप याद रखें, OCCEON. Water of ocean, that is sea, is saline in nature. saline का मतलब खारा होता है. समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है. And all these elements, fluorine, chlorine, bromine and iodine, obtained from saline water. So, the term halogens means originated from saline, originated from salinity, is given to all these elements. Fluorine, chlorine, bromine and iodine occurs in their ionic compounds, most probably, because they are able to form ionic compounds. Taking place chemical reaction with sodium, potassium, calcium, and so on, and forming their compounds like NaX, CaX2, KX, etc., where X is equal to FCl, Br and iodine. Chlorine occurs as NaCl. All of you know well that ocean contain water about 3/4 of total earth crust, total earth surface. जो भूमि का हमारे, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी का लगभग 75% पार्ट समुद्र के जल से घिरा हुआ है और उसमें सोडियम क्लोराइड होता है. तो हमें एक्सेस अमाउंट में ClBrI क्योंकि ओशन से ही मिलता है, समुद्र से ही मिलता है, इसलिए इनकी डेफिशिएंसी नहीं होने पाती है. ब्रोमीन और आयोडीन कंपैरेटिवली लीस्ट अमाउंट में मिलता है देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन. Fluorine also occurs in the form of
रॉक्स, चट्टानों के रूप में भी फ्लोरीन मिलता है, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरिस्पाट एंड सो ऑन। और ऐसे Cl है तो NaCl के फॉर्म में, KCl के फॉर्म में। देखिए जो सब आपने लिखा ना, X की जगह पे Cl Bri कुछ भी रख दीजिए आप, एक्सेट्रा भी लिखा है आपने कि मेटल के साथ में ये हैलोजन मिलकर के मेटल के हैलाइड बनाते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से M plus X is equal to Mx or M plus X2 is equal to Mx2. With any metal, halogens taking place in chemical reaction and forming their corresponding halides. तो अकरेंस की बात देखिए, कई फॉर्म में है, CaF2, Na3AlF6 क्रायोलाइड कहलाता है। कुछ कंसेप्ट यह भी याद रखिए, जैसे कि क्रायोलाइड का फार्मूला Na3AlF6 है, फ्लोरोपेटाइट का फार्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइस इंटू CaF2 है। ये फार्मूले पूछे जाते हैं आप लोगों से। कार्नेलाइट का फार्मूला KCl MgCl2 इंटू 6H2O। इस फार्मूलों पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए। KCl MgCl2 इंटू 6H2O कार्नेलाइट, क्या आपने नोट में नोट कर लीजिए इसे, KCl MgCl2 इंटू 6H2O। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कार्नेलाइट। पूछा जाता है कार्नेलाइट का फार्मूला क्या है, तो आप कार्नेलाइट लगेगा, बहुत बड़ा चीज है। कोई देखिए पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का हेक्साहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, हेक्साहाइड्रेट, हेक्स तो अगर नाम इसका पूछेंगे, वैसे तो पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड विद हेक्साहाइड्रेट, ये इसका फार्मूला होता है। और बहुत सी प्रॉपर्टीज एक ग्रुप वाइज आपको एक साथ बताई गई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं आप, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2 एंड NP5 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है आपको। यहाँ पर नोट करना चाहिए फ्रंट पर, NS2 एंड NP5 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दैट मींस इन आउटर मोस्ट सेल S subcell contain 2 electron and P subcell contain 5 electron, resulting 7 electrons are in outermost cell. So by accepting 1 electron, they complete their octet like their nearest inert gas. So most probably all these elements have tendency to accept 1 electron and forming anion of X minus formula. X minus means Cl minus, Br minus, F minus and I minus. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में आपको बताया गया है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है। डेफिनेशन कई बार बताया जा चुका है कि दो सिमिलर एटम को अपोजिट एक्सिस के साथ में हम मिला कर रखते हैं और उनके सेंटर से जो बीच में सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर देते हैं। जो डिस्टेंस मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियाई। क्योंकि एक साथ में दो एटम की रेडियस मिलती है, इसीलिए प्लूरल वर्ड एटॉमिक रेडियाई का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम आयनिक फॉर्म में बदल लेते हैं तो दो आयनों को जब इसी प्रकार से अपोजिट एक्सिस के साथ रखते हैं तो उस डिस्टेंस को, हाफ डिस्टेंस जो होती है सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ, उसे आयनिक रेडियाई कहा जाता है। तो ये बताया गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप फॉर ईच ग्रुप एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज रेस्पेक्टिवली। ये याद रखिए।
आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेशन आप जानते हो कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, पुल करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, such amount of energy is called as ionization enthalpy. The amount of energy required to pull an electron from any isolated gaseous atom is called as ionization enthalpy. And from top to bottom, ionization enthalpy decreases respectively. ये कई बार हो चुका, ये तो याद हो गया होगा. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात की जाए तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रमिक रूप से घटती हुई, क्रमिक रूप से घटती हुई नजर आएगी. कोई दिक्कत तो नहीं है? कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी वही कंसेप्ट बताया गया है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए है कि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं. और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो डिक्रीजेस जस्ट लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आप जानते हैं? टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, tendency of an element to pull electron from other element is called as electronegativity. And from top to bottom in any group, electronegativity decreases respectively. तो ये सब कंसेप्ट आपको पहले से बताए जा चुके हैं. बार बार हर ग्रुप के साथ नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमने हर ग्रुप के साथ आपको रिवाइज कर दिया कि कम से कम याद हो जाए. एक एग्जाम्पल छोटा सा इसी में दिया गया. हाइड्रोजन है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिप्रेजेंटेटिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. वाई एक पीरियड की बात करें हम तो बाय लेफ्ट टू राइट, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक क्यों होती है? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 7 आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. हाइड्रोजन है द स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड and therefore high effective nuclear charge. आपने पढ़ा है कि बाय लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटती है और टॉप टू बॉटम बढ़ती है, इसलिए इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाता है. एज ए consequence they readily accept one electron to acquire noble gas electronic configuration. ये पहले बताया जा चुका है, पहले से जानते हैं. Due to such reason the electron gain enthalpy of halogens are comparatively very high. कोई दिक्कत तो नहीं? कंसेप्ट क्लियर हो गया? हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ये कई बार हम डिस्कशन किए. आज एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं क्योंकि इसमें लास्ट टाइम है और ये फिजिकल प्रॉपर्टी वर्ड हर जगह आएगा. फिजिकल प्रॉपर्टी का सेंस होता है जैसे हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे एक ह्यूमन बॉडी का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? कहते हैं वो आदमी गोरा है, वो आदमी सांवला है, वो आदमी लंबा है, वो आदमी नाटा है तथा छोटा है, उस आदमी के बाल नहीं है अर्थात गंजा है, उस आदमी के सर पे बाल है, उस आदमी का शर्ट बहुत गंदा है, उस आदमी का शर्ट बहुत साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है. ये क्या है? व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. ये सडन चेंज किया जा सकता है. किसी गंजे आदमी को आप विग लगा दीजिए, बाल उग जाएंगे. किसी जिसके अपने नेचुरल बाल है उसके बाल को छील दीजिए, वो गंजा हो जाएगा. बोलिए. कपड़े गंदे हैं, साफ कर दीजिए, साफ हो जाएंगे 2 घंटे में. सूख जाने के बाद साफ तो तुरंत हो जाएगा, सूखने में 2 घंटे टाइम लगेंगे. गर्मी का दिन हो तो 1 घंटे. ये बाहर से दिखने वाली जो प्रॉपर्टी होती है एक्सटर्नल, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. ये फिजिकल प्रॉपर्टी. ये व्यक्ति बहुत विद्वान है तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है. कोई मूर्ख को आप विद्वान नहीं बना सकते 1 मिनट में.
किसी पागल को आप बिल्कुल सामान्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको दिखता कम है, उसकी आंखें कमजोर हैं मेरे तरह से, तो आप तुरंत ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लाएंगे कि लगा देंगे तो उस मेडिसिन से हमको तुरंत बढ़िया दिखने लगे। तो ये केमिकल चेंज है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और चेंज के बारे में आप सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई है, उसको आप रिवाइज करें। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होती है तो हम बात करते हैं कि क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये स्टेट भी आता है। ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। देखिए ये स्टेट जो है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात एक्सप्रेस करते हैं। सभी में कलर होता है। खास बात ध्यान रखिएगा कि सभी हाइड्रोजन कलर्ड होते हैं। कलर सब में होगा। क्लोरीन जो होता है F2 वो येलो कलर का होता है। F2 क्लोरीन जो होगा गैस है, किस कलर का होगा? येलो कलर का। क्लोरीन ग्रीनिश येलो, Cl2 ग्रीनिश येलो का कलर का होता है। Br2 रेड कलर का होता है और I2 अर्थात आयोडीन वायलेट कलर का होता है। तो ये देखिए कलर की बात आ गई। आपको याद रखना चाहिए कि फ्लोरीन येलो होता है और ब्रोमीन ग्रीनिश येलो होता है। सॉरी, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है और ब्रोमीन जो होता है वो कैसा होता है? रेड। और I2 वायलेट कलर का होता है। ये आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ छोटी छोटी और बातें, क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत कम मात्रा में पानी में मिसबेल होते हैं, घुलनशील होते हैं। और अगर आप बात करेंगे और बाकी जो है वो इमिसिबल है, जैसे फ्लोरीन इमिसिबल है, आयोडीन इमिसिबल है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर ले लीजिएगा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, बेंजीन, एसीटोन, अल्कोहल, ये सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? लिक्विड पानी की तरह से हैं, जिसमें मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, बेंजीन है, तो वे इनको ये सभी का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इन्हें हम ऑर्गेनिक, जब इन्हें घोलने की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। वही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। पानी क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। पानी में ये नहीं घुलते, बहुत कम घुलता है। क्लोरीन और ब्रोमीन घुलता भी बहुत थोड़ा सा, वेरी स्लाइटली। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सभी बहुत आसानी से घुलनशील होते हैं। तो बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, ये सभी पॉइंट्स हम समझते हैं कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। अगर ट्रेंड की बात आप करते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात आप करें कि बॉन्ड को तोड़ने में किसके कम ऊर्जा लगेगा? देखिए F2 Cl2 Br2 I2, ये Cl2 NaCl, Br2 NaBr, and I2 NaII। ध्यान से समझिए। यहां पर क्लोरीन की बात करिए, F। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है वो बहुत ज्यादा है और साइज बहुत छोटा है। तो दो फ्लोरीन एटम एक दूसरे से बिल्कुल करीब में आ जाएंगे, और जब बिल्कुल करीब आ जाएंगे तो फिर उनको तोड़ने के लिए आपको सफिशिएंट बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता जाएगा तो डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। तो ये डिसोसिएशन एंथैल्पी का आर्डर है। यही कारण है कि अगर आप आयोडीन की रिएक्शन करा रहे हैं तो कंपैरेटिवली इजीली हो जाएगा Br2 के कंपैरिजन में, और ब्रोमीन का रिएक्शन इजीली होगा इन कंपैरिजन टू Cl2।
and action of Cl2 will be easily than F2. तो इस प्रकार से अगर एक्टिविटी की बात करिए तो एक्टिविटी देखिए, ये बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, और एक्टिविटी देखिए बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये। और स्टेबिलिटी की बात करिए तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल वही चीज देखिए, सेम ऑर्डर, ठीक है बेटा। और ये बहुत कम स्टेबल होगा, इन्हें ये बहुत ज्यादा, अभी स्टेबिलिटी जब इसमें बहुत कम होगा तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। आयोडीन विल बी हाईली एक्टिव देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन विल बी हाईली एक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन विल बी हाईली एक्टिव देन क्लोरीन। एनी प्रॉब्लम? चेक कर लेंगे, आंसर दे देंगे। तो इस प्रकार से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पर को आप रिवाइज कर लें। एक एग्जांपल दिया गया है इसमें, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative compared to chlorine, fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine. Why? तो आंसर देखिए दिया गया है, इट इज ड्यू टू लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन बॉन्ड, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन। तो ये जो रीजन है ये आंसर में आप देखिए आंसर सॉल्व कर दिया गया है कि लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन्स हम अगले दिन चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप उसे रिवाइज करें, और कोई प्रॉब्लम होती है अगर किसी टॉपिक में डिस्कशन करें, डिस्कशन करके आप अपने क्वेश्चन अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। तो आज हमें स्टाफ देते लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन फॉर chemical properties of halogens. Thank you.